So, hey my friends, welcome. So, I want you to pause this video and read this question carefully and meticulously and try to think something about this question. This is the process of brainstorming. Most of the students are asking me, like, how we can brainstorm and all. Literally, I would just say, whenever you are seeing any question, you just have to think, you just have to stop yourself there and just think about it. What do you know about this? And you have to just divide the questions in parts. Like here, the Nehru Report 1928, the first effort to frame a constitution was nothing more than a bunch of uneasy compromises. If you don't understand anything from this question or whatever means whatever you are not thinking anything after watching or after reading this question. So let me tell you, you just have to go you just have to open the book Modern History, the Spectrum, and just think about just turn to the page or turn to this chapter, means Nehru Report and all, and you just have to read something about that, and after that you just have to come to this video and just try to answer, means in your head. You don't have to write initially. Okay, nobody writes on the first day, but yeah, I'm just telling you, I'm just encouraging you to do it. And this is the answer booklet of Shrishti Sharma, who secured the first rank. Let me tell you this thing. So you will have the idea how we can just enrich our notes. And if you are just trying to make the notes from the Modern History Spectrum, so this is the things that can help you. Means we can just add some points from here to there. Means so in our notes, so we can just what do you say, revise it in an efficient way. Okay. So let me start the video now. So the Nehru Report 1928, the first effort to frame a constitution, was nothing more than a bunch of uneasy compromises. मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, वो एफर्ट था, पहला एफर्ट था कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, लेकिन वो एक अनईजी कंप्रोमाइज़ था. अनईजी कंप्रोमाइज़ है नहीं, मतलब वो आसानी से, मतलब कंप्रोमाइज़ मतलब एक तरह से कि अनकंफर्टेबल था, मतलब इजी नहीं था, ओके, बेचैनी वाला कॉम्प्रोमाइज़ था. मतलब दो तरफ की भी पार्टी, ये समझो, वो आसानी से मान नहीं रहे थे कोई बात को. ये वाली बात हो रही है, सबके दिल में बेचैनी थी, एक तरह की रेस्टलेसनेस था, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे. सो देखिए, इंट्रोडक्शन इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आंसर: द नेहरू रिपोर्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1928 in opposition to a challenge by Lord Chelmsford to India. Okay, to Indians. So यहाँ पे देखिए, नेहरू रिपोर्ट किसने रखी थी? एक कमेटी थी जो कौन हेड कर रहा था? मोतीलाल नेहरू 1928 में. और किसके अपोजिशन में थे कि चैलेंज किया गया था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप नहीं बना सकते, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. सो देखिए, अब हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना सीखना है कि हम पहले की भी वीडियो में देखे थे कि हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड द नेहरू रिपोर्ट. And now we are talking about the first effort to frame a constitution. Was it that or not? We just have to talk about that. First effort to frame a constitution. It was. Okay, was it the first effort to frame a constitution or not? That is the thing here. So, as it laid down demands of the Indians, okay, defined political structure of the new India and defined a right of the people. So, ये देखिए, इस सेंस में क्या था ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब हमारी पॉलिटी कैसी होनी चाहिए और लोगों के राइट्स भी क्या कर रहे थे, डिफाइन किए थे. तो इस सेंस में दिस इज़ द फर्स्ट एफर्ट, दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन जस्ट से लाइक दैट. ओके, सो उसके बाद देखते हैं अब अनईजी कंप्रोमाइजेज, जो अनईजी एंग्जाइटी भरे थे, अनकंफर्टेबल थे, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर. सो देखते हैं अब यहाँ पे देखिए, पार्ट आंसर को भी डिवाइड किया गया, जैसे ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में क्या था, एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ फुल इंडिपेंडेंस. ओके, मतलब डोमिनियन स्टेटस, हम आपके अधीन ही रहेंगे, क्राउन के अधीन ही रहेंगे. दैट वाज द थिंग है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस. हम किसी के अधिकार के नीचे और आज़ाद भी है, इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस नहीं कि हम उन्हें कंट्री से बाहर धक्के मार कर नहीं निकाल रहे, लात मार कर नहीं निकाल रहे. दैट इज़ द थिंग. सो डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया गया था इंस्टेड ऑफ फुल इंडिपेंडेंस. सो कंटिन्यूड. ओके, रोल ऑफ द वॉइसरॉय इन इंडियन अफेयर्स. वही बात हो रही है कि जो वॉइसरॉय है वो हमारे इंडियन अफेयर्स में दखल दे सकेगा, ओके, अपनी नाक घुसा सकेगा, समथिंग लाइक दैट. फिर उसके बाद देखिए, बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, अभी दोनों के बीच क्या था, दो सेपरेट इलेक्ट्रोल्स. वही है ना, 2 सेकेंड, आई कुडंट सी. ओके, सब सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, दैट इज़ द थिंग.
सो दो द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर रिजेक्टेड, मतलब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था इसका मतलब क्या है कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट कर पाएंगे, जो भी मुस्लिम है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या होगा कि जो मुसलमान है वो मुसलमान के ही लिए वोट करेंगे, वो जो भी उनके लिए ठहरा रहेगा। ओके, जो मुस्लिम लीग में ये उनकी एक डिमांड थी। सो ये रिजेक्ट किया गया था, लेकिन इश्यूज़ लाइक रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन मेजॉरिटी प्रोविंसेस लाइक बंगाल पंजाब नॉट फाइनलाइज। तो ये भी डिमांड कर रहे थे कि जो मेजॉरिटी प्रोविंसेस है, जो क्या कहेंगे हम, जहाँ पे मेजॉरिटी है मुस्लिम की, वहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दैट वाज अ डिमांड। ओके, सो आप देखते हैं कि जो बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स, नेहरू एंड बोस अगेंस्ट आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ओके, पुट फॉरवर्ड बाय द रिपोर्ट। तो हमारे जो नेहरू थे और जो बोस थे वो इस आइडिया के ख़िलाफ़ थे कि हमें लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, मतलब फुल स्वराज, मतलब क्या कहेंगे आप, पूर्ण स्वराज। ओके, फिर इसके बाद देखिए, thus due to contradiction Jinnah later put forward his 14 demands while Nehru and Bose led the Indian for Independence League। so ये जो बाद में जिन्ना ने क्या किया, 15 डिमांड्स पुट फॉरवर्ड रखा, सामने रखा प्रपोजल, और बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग को लीड किया। ओके, नेहरू एंड बोस ने। फिर उसके बाद देखते हैं हम, फिर देखिए ये मेजर ब्रेक थ्रू, मतलब ये हुआ लेकिन ये एक अच्छा अचीवमेंट भी था हमारे लिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम डिफाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये दो चीज़ें ना पहली बार डिफाइन की गई थी। डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कंसेप्चुलाइज्ड, और जो कॉन्सेप्ट था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वो भी एक फिर से सामने रखा गया, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन्स डिमांड वो रखी गई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, उसे कंसेप्चुलाइज किया गया, उस कॉन्सेप्ट को रखा गया, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। फिर उसके बाद देखिए, प्रूव रॉन्ग चैलेंज ऑफ जो उसने चेम्सफोर्ड ने जो चैलेंज किया था उसे हमने क्या किए, रॉन्ग साबित कर दिए। सो द नेहरू रिपोर्ट डज नॉट कंप्लीट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन, मतलब जो नेहरू रिपोर्ट थी वो कंप्लीट तो नहीं था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन था इन द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ स्वराज। मतलब ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो सामने रखने के लिए एक स्टोन था, कॉर्नर स्टोन था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इस कॉन्सेप्ट को रखा। दैट वाज द थिंग हियर। सो दिस वाज द वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक्ड, if you have enjoyed this video, and if you have learned something new, you have to let me know in the comment section. And what can you just add, means taking something from this answer booklet to your notes, you just have to let me know in the comment section as well. And if you know something more about this question, you just have to put that in the comment section in bullet points, and that will help the other students or aspirants. Okay, so and if you are still watching this video, thanks for watching this video.